Assalamu alaikum class. Today we are going to do our English work for class KG1. I am your English teacher for class KG1. Take out your English books and your English copy series. This is your English book and this is your English copy series. Open your books because we will do our classwork in our book and homework in our copy series. So first we will start our book. Open your books, page number 40, page number 40 and page number 41. 2 pages in your book, page number 4040 and 4141. And which letter we are going to do today? Letter is N. Which letter? N. And sound N. N. You can say N or you can say N. Today we are going to do letter N, sound N. Before we have done, let's see the previous work. Which letter we have done before? We have done M. Sound M. M. You have done this work, page number 30, letter M, sound M. Today we are going to do letter N, sound N. First, write today's date, 21st September 2020. 21 भी पढ़ेंगे, लेकिन when we write in our date 2 and 1, so we always say 21st September. 1 को हम फर्स्ट में चेंज कर देंगे. 21st September 2020. Then write CW means class work. CW and CW means class work. The work which we do in our class is called class work. And anybody tell what is the day today? What is the day today? Very good. Today is Monday. What is the day today? Monday. M-O-N-D-A-Y. Very good. Today is Monday. What was the day yesterday? कल कौन सा दिन था? कल छुट्टी होती है पापा की, पापा घर में होते हैं. What is the day? What was the day yesterday? Today is Monday and yesterday was? Very good. Yesterday was Sunday. Sunday is a holiday. Yes. So let's start our work with a new day and new work. Today is Monday, first day of the week. Write today's date, 21st September 2020. Write CW. And which letter we are going to do? N. Say loudly. Say N. And then enjoy the pictures. You can see the pictures on this page. So beautiful, colorful pictures on this page. So we have to repeat the sound with the letter and we have to read these sentences and then we have to enjoy the colorful pictures. Let's start our reading. How many pictures are there? 1, 2, 3. And what is there on the picture? There are birds. Very good. There are many birds on this page. Let's read our sentences. N. Letter N, sound N. N, nanny. N, nightingale. Makes a nest. Repeat again. Nanny, nightingale, makes a nest. ये नैनी नाइटिंगेल है, वो क्या बना रही है? नेस्ट बना रही है, मतलब अपना घोंसला बना रही है. अपने बच्चों को उसमें रखने के लिए, जैसे हम घर में रहते हैं वैसे परिंदे कहाँ पर रहते हैं? घोंसले में. एंड इसको क्या बोलेंगे? नेस्ट. नेस्ट. नैनी नाइटिंगेल मेक्स अ नेस्ट. वेरी गुड. कम टू द नेक्स्ट पिक्चर. बेबी नाइटिंगेल brings a needle. You can see इसके मुंह में सुई पकड़ी हुई है. सुई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नीडल. और ये बेबी नाइटिंगेल है, उसका बेबी है ये, उसने मुंह में क्या पकड़ा हुआ है? सुई पकड़ी हुई है और सुई को कहेंगे नीडल. वेरी गुड. बेबी नाइटिंगेल brings a needle. Baby nightingale
brings a needle. Very good. See the last sentence. You can see again a beautiful bird over here. Another nightingale brings a necklace. ये क्या लेकर आई है? हार. और हार को क्या कहते हैं? Necklace. Very good. Another nightingale brings a necklace. Repeat again. Another nightingale brings a necklace. Very good. Let's repeat all these sentences again with the letter and the sound. N, N. Nanny nightingale makes a nest. Baby nightingale brings a needle. Another nightingale brings a necklace. Very good. You can see this sentence written on the corner. Let's read this also. The bird lives in the nest. मैंने आपको पहले भी बताया था birds कहाँ पर रहती हैं? घोंसले में. घोंसले को इंग्लिश में बोलते हैं nest. क्या बोलते हैं? Nest. The birds lives in the nest. Very good. This was page number 40. Now come to page number 41. We have to start on the dot and trace writing and what all the work we have to do on page number 41. First we have to trace these letters, then we have to write by self and we have to say loudly. Let's start our work. You have to keep your pencil on this black dot and then you have to come down. You have to come down, then turn over here and then go up. It will make N. Repeat again with me and do it again please. Come down, then again come to the dot, then come over here down and go up. It will make N. Repeat loudly and then write. Which letter is this? N. Now in these two lines we have to trace on these dots. Start with me. You have to do like this. And you have to write on three lines because capital letter starts from the first red line to the second blue line. You have to trace all these letters. You can see N. You have to complete all these dots and then after doing this come to the next line where you have to write by yourself. By yourself. Very good. Is that clear? You have to write. You have to start from this dot, come down again and go up. You have to start from this dot, come down, again down and then go up. Come down, again down and from here again. Is that clear? In the same way you have to complete the whole page of page number 41. You have to write on all these dots. You can see there are two dots. You have to come down from this dot. Then you have to turn over here and again you have to come down from this dot. Is that clear? This was page number 40 and 41 in your book. Now open your mind quiz copy series. I am giving you a homework task. Open your page number 52. Page number 52 you have to do for your homework. 53, 54. 3 pages in your copy series. What you have to do? First, write today's date, 21st September 2020. Write HW because this is your homework. You have to trace in this letters. You can see both letters N and N. You have to trace in both the letters. Then you have to color the pictures. आप कलर्स कोई भी बच्चों के सामने रख दें, बच्चा अपनी मर्जी से इसमें कोई भी कलर कर सकता है. Please color it very nicely. You have to do page number 52. You have to color all these pictures and you have to read. N for nest, N for net, N for nut. ये है nest, net और nuts. N for nest, N for net, N for nut. Come to the next page. You have to do these 2 lines. You have to complete your tracing on page number 53 and page number 54. You have to trace both the lines and then you have to write. You can see I have done for you. In the same way you have to complete all these dots on page number 53 and page number 54. And what you have to write? N.
You can see in the same way you have to write over here and on this page also. You have to start from the dark line and end on the light black line. You can see. Let me do one more for you. In the same way you have to complete your whole page. This was your homework. Page number 52, page number 53, page number 54 in your Mind Quest copy series. 2 pages you have to 2 works you have to do. You have to do your English book work and your copy series work. This was your English work for class KG1. See you next time. Allah Hafiz. Assalamu alaikum class. Welcome back to your maths class for class KG1. Today we are going to do our maths work. Take out your maths books. This is your Maths Mind Quest Mathematics book, and this is your Mind Quest Mathematics series. Copy series for maths, and this is your book. In your book we are going to do our class work, and in copy series we are going to do our homework task. Very easy work today we are going to do. Let's start our class work in our books. Open your books, page number 28. Page number 28. Have a look of our previous work. पहले अपने previous work को check कर लेते हैं हमने कौन सा काम किया था. We have done numbers 29 and 30. 2 numbers we have done before. Number 29 and 30, 30. We have done our counting from 1 till 30. Now today we are going to do, we have to write from 21 till 30. We have to complete our counting. Today we are writing from 21 till 30 on the whole page. Is that clear? Let's start your work. Page number 28. What is the date today? 21st September 2020. Write today's date. 21st September 2020. Very good. Let's start our work. One thing please class, आपको यहाँ नजर आ रहा है ये वो लेटर नंबर्स जो हैं वो लाइन से उठा के बनाए हुए हैं. Is that clear? But you are not going to do your work like this. आप लोग ऐसे काम नहीं करेंगे. आप लोग इस तरीके से लिखेंगे जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ. आप लोग 2 बनाएंगे. यू हैव टू मेक 2 1 21. लाइन को टच करके बनाएंगे. देन राइट 2 2 22. प्लीज टच द बेस लाइन वाइल राइटिंग योर नंबर्स. ये जो नीचे की बेस लाइन बनी हुई है इसको टच करके आप अपने नंबर बनाएंगे. बिल्कुल सेम आप इसी के नीचे दोबारा से बनाएंगे. 2 3 23. इसको पढ़ेंगे 20 and 3 23. 20 and 4 24. Count the numbers while writing. Touch the base line while writing, and please repeat your number again and again while writing. Writing should be very neat. 25 25. 20 and 6 26. Touch the baseline while writing. 20 and 7 27. 20 and 8 28. 20 and 9 29. And then comes 3 0 30. After 29 we will write 3 0 30. In the same way you have to complete all the page. You can see you have to touch the base line while writing. Let me complete the whole page for you. Then you have to leave this line. This whole line you have to leave and then start on this line. 2 1 or 20 and 1. You can say 20 and 1 21. 20 and 2 22. 20 and 3 23. प्लीज़ बच्चों को हेल्प करें कि नंबर के नीचे बिल्कुल नंबर आना चाहिए और नंबर लाइन से टच करके बनाएं. प्लीज़ राइट द नंबर अंडर द सेम नंबर and touch the base line while writing. You can see I have done for you. 20 and 4 24. 20 and 5 25. 20 and 6 26. 20 and 7 27. 20 and 8 28. 20 and 9 29.
30. Is that clear? Please sit with your child while doing this work. Help your child while writing the numbers. Please do your work very carefully. I need your work very neat and tidy. You have to write on the line. Don't write like the way they have written for your book one. जो बुक्स वालों ने किताब में लिखा बस तरीके से नहीं करना है. You have to complete your page how I have done. लाइन को टच करके नंबर लिखेंगे और आपको बिल्कुल इसी तरीके से काम करना है जैसे मैंने आपको कॉपी में करके बताया है. इन 2 लाइनों में लिखेंगे 21, देन लीव दिस लाइन, ये वाली लाइन लीव कर देंगे, देन अगेन राइट ऑन दीज 2 लाइन्स. इज दैट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 29. हमारी काउंटिंग कंप्लीट हो गई है फ्रॉम 1 till 30. तो इस पेज पे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे 1 से लेकर 30 तक की राइटिंग करने की. ये हमारा CW मतलब क्लास वर्क का काम है. दिस इज आवर क्लास वर्क, सो वी हैव टू फिनिश दिस वर्क नाउ. स्टार्ट योर वर्क विथ मी. आपने फिर देख रहे हैं यहाँ पे सारे लेटर्स जो है, नंबर्स जो है वो लाइन से ऊपर लिखे हुए हैं. बट जब हम इसको लिखेंगे तो हम सारे नंबर्स लाइन को टच करके लिखेंगे. 1, काउंट योर नंबर्स एंड देन राइट विथ मी. व्हाट कम्स आफ्टर 1? Very good. You have to read the number and then you have to write. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, 10. Touch the lines while writing all your numbers. Then come to the next line. You have written, see, these numbers are written 1, 1, 11, or you can say 10 and 1, 11. Then write 10 and 2, 12, 10 and 3, 13. Touch the line while writing, please. 10 and 4, 14, 10 and 5, 15, 10 and 6, 16. इसको 10 इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि ये 11 का मतलब 1 का जो नंबर है वो आ रहा है 10 की वजह से. तो हम इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे 10 and 1, 11, 10 and 2, 12, 10 and 3, 13. इसी तरीके से 10 and 7, 17, 10 and 8, 18, 10 and 9, 19, 2, 0, 20. Come to the next line. You can see 21. We will write 20 and 2, 22, 20 and 3, 23, 20 and 4, 24, 20 and 5, 25, 20 and 6, 26, 20 and 7, 27, 20 and 8, 28, 20 and 9, 29, 30, 30. अब आपको एक चीज़ और बता दूं, ये था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. जब 9 तक हमारे नंबर्स होते हैं वो हमारे कहलाते हैं यूनिट नंबर. मतलब ये 0 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो होते हैं यूनिट नंबर. यूनिट मीन्स 1. यूनिट मीन्स 1. कोई भी डिजिट जो 1 के उसमें आएगा मतलब सिंगल नंबर होगा वो कहलाएगा यूनिट. इसी तरह से जब 2 नंबर हो जाते हैं तो पहला नंबर यूनिट, क्योंकि 0 यूनिट में आता है, जब उसके साथ एक और नंबर लग जाता है तो वो क्या बन जाता है 10. यहाँ पे 2 लग गया तो क्या बन गया 20. ये हमने अलग बॉक्स में इसलिए लिखा है कि ये अब एक नंबर नहीं रहा, ये बन गए हैं 2 नंबर. हाउ मेनी नंबर्स आर दीज? 2 नंबर्स. और जब भी 2 नंबर्स हम लिखते हैं वो कहलाते हैं टेंस. ये चलता है 99 तक. 99 तक हमारी काउंटिंग रहती है 2 डिजिट्स नंबर्स पर, मतलब 2 डिजिट के नंबर्स होते हैं, जैसे 10, 11, 21, 31, 41, 91, 99. उसके बाद आता है 100, उसमें आ जाते हैं 3 नंबर. इसी तरीके से हम ये अपना काम करेंगे. आपका आ गया 10, 20, 30. आपकी राइटिंग आपने करनी है फ्रॉम 1 till 30. Read and write. This was page number 28 and 29 of your maths books. Now take out your mind quiz copy series. We'll start our copy series. Open your copy series. This is your copy series. Open your copies. Page number 54.
जैसा हमने बुक में काम किया है, इन द सेम वे यू हैव टू कंप्लीट योर कॉपी वर्क। हमने जैसे बुक में किया था सेम आप अपनी कॉपी में करेंगे। कॉपी वालों ने सेम वही लाइन से उठा के लिखा हुआ है, पर हम कॉपी में लाइन से उठाकर नहीं लिखेंगे। हम हमेशा अपना काम लाइन से टच करके लिखेंगे। आप देख रहे हैं, मैंने आपका पहला काम कर दिया है। आई हैव रिटन फॉर यू वन, राइट टुडेज डेट फर्स्ट 21 September 2020 and write HW because this is your homework, so you have to write HW. Page number 54. I am repeating your page number again. Page number 54 of your copy series. You have to start your counting. Let me do for you. One line, 21, 22, 23. Touch the line and write and read the counting again and again. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30. Is that clear? In the same way you have to complete page number 54. After writing this, you have to leave this line and then write again 21 and complete your counting. Then leave this line and again complete your counting. You have to leave one line while writing. This was page number 54. Come to page number 55. You have to complete counting from 1 till 30. In the same way you have done in your books, you have to do in your copy. You can see, touch the line and write 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and then when we have to write 10, you will write 0 under 9 and 1 on the new line, new box. You can see I have done. The same way you have to complete 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30, 30. Here 3 and here 4, 0, 30. In the same way you have to complete page number 56, 55 and 56. Write today's date, write homework. How many pages you have to do in your copy series? 3 pages, page number 54, 55 and 56. This was your maths book and copy series work. See you in the next class. Allah Hafiz. Assalamu alaikum class. Welcome back to your next class for KG1. मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर। आज हम अपना उर्दू की किताब और उर्दू की कॉपी सीरीज़ का काम करेंगे। यह है आपकी उर्दू की किताब और यह है आपकी उर्दू की कॉपी सीरीज़ क्लास KG1 के लिए। सबसे पहले हम अपनी किताब का काम करेंगे, फिर हम अपनी उर्दू की कॉपी सीरीज़ में अपना होमवर्क का काम मार्क करेंगे। सबसे पहले उर्दू की किताब को खोलें। आज हम करेंगे सफ़ा नंबर 34, मतलब 34। कौन सा सफ़ा करेंगे आज हम? सफ़ा नंबर 34। आप देख सकते हैं सामने अपने स्क्रीन पर पेज नंबर 34, उर्दू में सफ़ा नंबर 34। सबसे पहले आज की तारीख लिखेंगे 21 सितंबर 2020 और लिखेंगे CW, मतलब क्लास वर्क, क्लास का काम। जो काम हम जमात में करते हैं उसे बोलते हैं CW, क्लास वर्क। आज हम करेंगे दाल के खानदान के तीनों हुरूफ। आप देख सकते हैं दाल, दाल, जाल, ये 3 हुरूफ हमने किए थे। पीछे के सफ़ों पर चेक कर लें एक बार। हमने दाल के कौन कौन से हुरूफ किए थे? दाल, दाल, दाल का खाली, आइए देखिए, दाल खाली, इसके ऊपर कोई नुक्ता, कोई छोटी तौय कुछ नहीं है, ये खाली है। दाल खाली, दाल, दाल के ऊपर छोटी तौय, फिर से पढ़िए दाल, दाल के ऊपर छोटी तौय, फिर आया हमारा हुरूफ जाल, जाल के ऊपर एक नुक्ता, जाल, जाल के ऊपर एक नुक्ता। शाबाश। तो ये थे हमारे दाल के खानदान के 3 हुरूफ जो कि आज हम इकट्ठे करेंगे सफ़ा नंबर 34 पर। दाल, दाल, जाल। इस सफ़े पे हमने क्या करना है? आवाज़ को तस्वीर से मिलाना है। इब्तिदाई आवाज़ को तेज़ी से पुकार कर
तस्वीरों से मिलाना है। जैसे हम बिगनिंग साउंड्स को मैच करते हैं इंग्लिश में, इसी तरह इसमें हमने बिगनिंग साउंड्स को पिक्चर्स के साथ मैच करना है। दाल, द, दाल शुरू की आवाज ड, जाल शुरू की आवाज ज। अब इन तस्वीरों से मैच करेंगे। ये है डफली, ये है जखीरा और ये है दीवार। शुरू की आवाज पे तवज्जो देके उसको मैचिंग करेंगे, मतलब हुरूफ को तस्वीर के साथ मिलाएंगे। इंग्लिश में इसको कहते हैं मैचिंग, उर्दू में कहते हैं मिलाना। सबसे पहले हुरूफ है दाल। यहाँ पे 3 तस्वीरें हैं, डफली, जखीरा और दीवार। शुरू की आवाज पे तवज्जो दीजिए। दाल, द, द किससे मैच करेगा दाल? दीवार से। तो स्केल यहाँ पर रखकर आप इसको इसके साथ मैच कर देंगे। ये देखिए, दाल से दीवार, इसको इसके साथ मिला देंगे। दाल से दीवार, पढ़ते जाइए और मिलाते जाइए। दाल से दीवार। फिर आता है हुरूफ दाल। शुरू की आवाज पे तवज्जो देके इसको इसके साथ मिलाइए। डा, डफली, डा, डफली, दाल को डफली के साथ मैच कर देंगे और दोहराते जाइए। दाल से डफली, दाल से डफली। फिर आइए नीचे जाल, जाल से जखीरा। शुरू की आवाज पे तवज्जो दीजिए। ज, जाल से ज, जखीरा, ज, जखीरा। दाल से दीवार, दाल से डफली, जाल से जखीरा। ये आपने मैच कर लिया पेज नंबर 34 पर। अब दूसरे सफ़े पर आइए, सफ़ा नंबर 35, 35। कौन सा पेज नंबर है ये? सफ़ा नंबर 35। यहाँ हमने क्या करना है, तस्वीर का पहला हुरूफ लिखना है जो उसके साथ उसकी पिक्चर्स बनी हुई है। यहाँ पे जो तस्वीरें बनी हुई है उनके सामने उसका पहला हुरूफ लिखना है। शुरू की इब्तिदाई आवाज़ लिखनी है इन तस्वीरों के सामने। ये क्या है? ज़रात। किससे शुरू होगा? ज़रात। शुरू की आवाज़ पे तवज्जो दे। ज़रात, जाल। यहाँ पर हम लिखेंगे जाल, जाल के ऊपर एक नुक्ता। जाल से ज़रात। ये क्या है? डिबिया। वेरी गुड। ये क्या है? किसकी तस्वीर है ये? डिबिया। शुरू की आवाज़ पे तवज्जो दीजिए बिगनिंग साउंड के ऊपर। डिबिया, ड, डिबिया। तो शुरू की आवाज़ क्या आ रही है? डाल, डाल। हम यहाँ लिखेंगे डाल, डाल के ऊपर छोटी तौएं। फिर उसके बाद ये किसकी तस्वीर है? दिया। क्या है ये? दिया। शाबाश। लाइट जाती है तो हम जलाते हैं ना, जब इमरजेंसी लाइट नहीं होती है तो हम दिया रोशन करते हैं। तो ये क्या है? दिया। शुरू की आवाज पे तवज्जो दीजिए। द, दिया, दिया। तो हम यहाँ लिखेंगे दाल। क्या लिखेंगे यहाँ पर? दाल से दिया, दाल से दिया। दोबारा पढ़े। जाल से जखीरा, सॉरी, जाल से ज़रात। जो पिक्चर में हमारी तस्वीरें थी, जाल से जखीरा, जाल से ज़रात, तो ये वही है, जाल से ज़रात। फिर दाल, दाल से डिबिया, दाल से डब्बा, दाल से ढोल, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर तस्वीर के साथ मैच करके लिखना है, तो दाल से डिबिया। फिर आ गया दाल, दाल से दिया, दाल से दीवार, लेकिन यहाँ पर क्या तस्वीर है? दिया, तो हम लिखेंगे दाल से दिया, दाल से डिबिया, जाल से ज़रा। पेज नंबर 34 और 35 के बाद आ जाए सफ़ा नंबर 36 पर, 36। इसमें अलिफ से लेकर जाल तक आपने नुक्तों पर भी लिखना है और खुद लिखने की मशक करनी है। मैं आपके साथ ही वाला काम करूंगी। सबसे पहले आप नुक्तों पे तहरीर करेंगे, ये लिख रहे हैं आप, नुक्तों पे लिखने की मशक करेंगे अलिफ, और मेरे साथ पढ़ते भी जाइए, लिखते भी जाइए, पढ़ते भी जाइए। अलिफ मद आ। अब आइए सफ़ा नंबर 36, 36। अब हम करेंगे सफ़ा नंबर 36। 36 पे हमें क्या करना है? जैसे हमने पिछले सफ़ाओं पर अलिफ से लेकर जाल तक की मशक पूरी कर ली है, आज हमने ये सफ़ा पूरा इसको देख देख के नीचे लिखना है। पहले हमने ऊपर की लाइनों में जो नुक्ते डले में इसमें पेंसिल फेरेंगे, उसके बाद इन 2 लाइनों में लिखेंगे, फिर पेंसिल फेरेंगे, फिर इन 2 लाइनों में। इसी तरीके दाल दाल जाल पहले ट्रेसिंग करेंगे, मतलब पेंसिल फेरेंगे, और उसके बाद नीचे की लाइनों में लिखेंगे।
सबसे पहले आज की तारीख लिखेंगे 21 सितंबर 2020। ऊपर की ये पढ़ेंगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, अलिफ ता जाल लिखने की मशक करें। मतलब अलिफ से लेकर जाल तक लिखने की मशक करनी है। पहले पेंसिल फेरेंगे, उसके बाद लिखने की कोशिश करेंगे। चले मेरे साथ काम शुरू करें। इस काले स्याह नुक्ते के ऊपर पहले पेंसिल फेरेंगे, अलिफ, अलिफ मत आ। इसी तरीके से आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। बे, बे के नीचे एक नुक्ता, लिखने के साथ साथ दोहराते भी जाइए। पे, ते के पेट में दो नुक्ते, टे के पेट में छोटी तौएं, और फिर आता है से के पेट में 3 नुक्ते। ये हमने पेंसिल फेरी। अब हमने इस लाइन के ऊपर इसको लिखने की मशक करनी है। मेरे साथ साथ आप करेंगे। अलिफ के नीचे बिल्कुल बनाएंगे अलिफ और लाइन के साथ टच करेंगे। अलिफ, अलिफ के बाद अलिफ मत आ, बे, बे के नीचे एक नुक्ता, पे के नीचे बिल्कुल पे लिखेंगे, पे के नीचे 3 नुक्ते, ते के पेट में 2 नुक्ते, टे के पेट में छोटी तौएं, और फिर से। इसी तरीके से आपने ये पूरा सफ़ा मुकम्मल करना है। अलिफ, अलिफ मत आ, बे, पे, ते, से। इसको देखकर इस लाइन में भी आपने इसी तरीके से तक लिखना है। फिर आ जाए नीचे की लाइन में, यहाँ है जीम। पहले पेंसिल फेरेंगे। चे, जिम के पेट में 1 नुक्ता, चे के पेट में 3 नुक्ते, फिर हे को पढ़ेंगे खाली, खे के सर पे 1 नुक्ता। इसमें पेंसिल फेरने के बाद इसकी दूसरी और तीसरी लाइन में हम लिखने की मशक करेंगे। जीम, चे, हे, खे। हुरूफ को हुरूफ के नीचे जैसे जैसे यहाँ लिखा हुआ बिल्कुल सेम उसी तरह उसके नीचे यहाँ लिखेंगे जीम, चे, हे, खे। उसके बाद आते हैं दाल के ऊपर। अलग अलग देखें, यहाँ पे बे का खानदान, जीम का खानदान, और यहाँ पर आ जाता है हमारा दाल का खानदान। दाल के ऊपर भी पैसे लिखने की मशक करेंगे। दाल, दाल, दाल के ऊपर छोटी तौएं, और फिर जाल, जाल के ऊपर 1 नुक्ता। यहाँ पर लिखने के बाद दूसरी लाइन में आप खुद लिखेंगे दाल, डाल, जाल। अब जो आखिरी की लाइन है उसमें आप अपनी प्रैक्टिस खुद करेंगे, मतलब खुद मशक करेंगे। आ गया? दोबारा से दोहरा लेते हैं। अलिफ, अलिफ मद आ, बे, पे, ते, से। जीम, चे, हे, खे। दाल, डाल, जाल। हमारी राइटिंग जाल तक मुकम्मल हो गई। ये था हमारा किताब का काम। अब आइए अपनी उर्दू की कॉपी सीरीज़ की तरफ। ये है हमारी उर्दू की माइंड क्वेस्ट कॉपी सीरीज़। जैसे हमने किताब में किया था काम, उसी तरीके से हमने कॉपी में करना है। सफ़ा नंबर 50, 50, 51, 51 एंड 52। पेज नंबर 50, 51 और 52। 51 में हमने इन पिक्चर्स पे कलर करना है सारी तस्वीरों में। आज की तारीख लिखेंगे, होमवर्क लिखेंगे 21 सितंबर 2020। फिर ये जो दाल, डाल, जाल लिखे हुए इन पे ट्रेसिंग करेंगे, मतलब पेंसिल फेरेंगे और फिर इसको मैच करेंगे। दाल से दीवार, जाल से ज़खीरा और दाल से डफली। दोबारा पढ़ते हैं। दाल से दीवार, जाल से ज़खीरा, दाल से डफली। इसको मैचिंग करेंगे, कलर करेंगे। फिर पेज नंबर 51 इन तमाम तस्वीरों में रंग भरेंगे और इसके पहले हुरूफ को लिखेंगे। जाल, जाल से ज़रात, दाल, दाल से डिबिया, दाल, दाल से दिया। इनमें रंग भी भरना है। जैसे पीछे सफ़े पे हमने रंग भरे हैं, इसी तरीके से आपने इसमें भी रंग भरना है और यहाँ पर इसके सारे हुरूफ को सही तरतीब से लिखना है कि जाल, ज़खीरा या ज़रात, दाल, दबिया और दाल से दिया। जैसे हमने किताब में पेज नंबर 36 पे लिखने की प्रैक्टिस की थी, मशक की थी, उसी तरीके से पेज नंबर 52 पे आप लिखने की मशक करेंगे। पहले हुरूफ लाइन में हमने नुक्तों पर लिखना है, दूसरे लाइन में आप खुद लिखेंगे और तीसरी लाइन में भी आप खुद लिखेंगे।